صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، بڑی خوبصورت باتیں کی. تو یہ جو قدرتی آفات آ جاتی ہیں، کبھی سیلاب کی صورت میں، کبھی زلزلے کی صورت میں، یہ ہمیں کیا درس دیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوا، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم میں جو پچھلی اقوام ہیں ان کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مثالیں دی ہیں ان آسمانی آفات کی، کہ جو عذاب کے طور پر ان قوموں پر نازل کیا گیا. جی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر مختلف قوموں میں مختلف قسم کی جو اخلاقی برائیاں اور بیماریاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ابھر کر سامنے آئیں، اور وہ قومیں اس کے اندر غرق ہو گئی. جی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ نائب بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسی انداز میں جو ایک خلیفہ کا منصب ہوتا ہے اس انداز میں وہ دنیا میں زندگی گزارے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوموں کو نبی اور انبیاء ہر قوموں میں بھیجے تاکہ وہ ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سکھائیں، اور ان کو یہ بتائیں کہ جی اس کائنات کا مالک اور خالق کون ہے، اور یہ دنیا تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ایک عطیے کی طرح اور خزانے بیش بہا اس کے اندر اور اس کی فراوانی کے ساتھ تمہارے لیے یہ مہیا کر دی ہے. اس کو استعمال کرو، کھاؤ پیو اور اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو. سبحان اللہ. اچھا، جن قوموں نے اس کا خیال نہیں رکھا وہ ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان شمار ہوئے. اب امت مسلمہ کو کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہادی رسول نبی یعنی محسن انسانیت اور وجہ تخلیق کائنات، اور جن کے لیے اب تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور یقیناً ان کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرمائی، تو اس کے مطابق وہ اس یعنی امت مسلمہ کے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے محفوظ کر دیا کہ مکمل طور پہ یہ امت تباہ نہیں ہو سکتی. لیکن جو اس کی خطائیں، جو اس کی غلطیاں، وہ چھوٹی موٹی ان کے حوالے سے ایک پنشمنٹ اور ایک کہنا چاہیے کہ انڈیکیشن جی کہ آپ جو ہیں کس راستے پر جا رہے ہیں. اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سبحان اللہ، ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین امت بنایا ہے. تنہون عن المنکر، کہ تم جو ہو وہ منکر سے لوگوں کو روکتے ہو اور بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو، تو تمہارا رستہ تو بالکل سیدھا ہونا چاہیے. جناب صاحب زحمت کی معافی چاہتا ہوں، ٹیلی فون کال لے لیتے سر. کال آئی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب؟ ہلو ہلو، کون صاحب فرما رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میں شفیق الرحمان بات کر رہا ہوں، انجینئر شفیق الرحمان. سر آپ سے ایک درخواست ہے، اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز کم کر دیجئے گا پلیز. ریاض سعودی عرب سے. جی جی، اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز کم کر دیجئے گا جناب. سر میں آواز میری بالکل بند ہے. اچھا فرمائیے. ہاں جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء امت جو ہیں جی، خصوصی طور پر پاکستان کے علماء امت، ان میں تمام جتنے بھی مسالک ہیں ان سب نے مل کر جو اس وقت ہمارے اوپر آفت آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کام سر انجام دیا ہے. اچھا جی، اچھا اوکے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. جی صاحب. انجینئر شفیق الرحمان صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ کلیکٹیولی ہم سب کو اس ساری صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے. ہم سارا کام حکومت پہ چھوڑ دیں، اٹس ناٹ گڈ. سارا کام انتظامیہ پہ چھوڑ دیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. سارا کام صرف سوشل ویلفیئر تنظیموں پہ چھوڑ دیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. علماء بھی اس معاشرے کا ایک اہم طبقہ ہے، ان کی بھی ذمہ داری ہے، ان کو بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ میں جا بجا روزانہ 25-30 جگہ سے رپورٹس لیتا رہتا ہوں، تو لوگ مسجدوں سے بھی اعلان کر رہے ہیں، وہاں لنگر جمع ہو رہا ہے، پھر کھانا کھلانے کے لیے جایا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے لوگ اپنے راشن جمع کرنے کی ترغیب دے کر
अपने अपने मोहल्लों से ट्रकों में भर करके भिजवा रहे हैं। ज़ाहिर है कि अब तक तो सैलाब की कैफियत ऐसी है कि हुकूमत को तो खुद अभी संभलने का भी मौका नहीं मिला है, क्योंकि हुकूमत तो क्या हम और आप सोच भी नहीं सकते थे कि इस पैमाने का आ जाएगा कि जो 2005 के ज़लज़ले से भी और सुनामी से भी और हेटी वाले सारे मामला का रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो पूरी मिल्लत इस वक्त लगी हुई है, और इसके साथ साथ जो हमारी बहन अभी बात कर रही थी उसकी रोशनी में उलमा अपने जुमे के खिताबात में कौम को इस तरह भी माहिर कर रहे हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ कोताहियां हुई हैं, आए हम रोएं, गिड़गड़ें, अल्लाह की बारगाह में सरबसजूद होकर तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होगा। अल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। हम सोचते हैं काम कितना मुश्किल है, वहाँ तो कुन कहने की देर है और बस बात ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए उस अल्लाह से रुजू करने की तरफ उलमा सारे लोगों को साथ साथ माइल भी कर रहे हैं। बेशक, बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी जैसे कि बात हो रही है कि जाहिर है कि इस मुसीबत में, परेशानी में जिससे जो हो रहा है वो कोशिश कर रहा है कि अपने सैलाब ज़दगान की मदद कर सके, हमारे अपने बहन भाई हैं वो। तो ये जो एक ज़िंदगी में सूरत हाल है कि वो लोग जो दूसरों को देते हैं, एक वक्त आता है कि उनका हाथ दूसरों के आगे फैला हुआ नज़र आता है। ऐसा क्यों होता है ज़िंदगी में? असल में बात यह है कि कुरान करीम हमें बार बार दावत देता है कि जो रिस्क अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है उस रिस्क के अंदर दूसरों का भी हिस्सा है। बेशक। यानी जब हम उस रिस्क को पाते हैं तो अल्लाह की तरफ से एक ऐसा अतिया होता है कि जो हमारे अपने इस्तेमाल के लिए भी है, और उसमें उन कमज़ोरों का, उन ज़ईफ़ों का, उन लोगों का कि जो ख़ुद अपने रिस्क को हासिल करने के लिए तगदो नहीं कर सकते, उनका भी हिस्सा है। और जब हम उनका हिस्सा निकालते हैं और उन तक पहुंचाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता है, और फिर हम पे से वो आफतें और वो मुसीबतें टालता रहता है कि जो हम पर आने वाली होती हैं। देखिए, रिस्क का हिसाब किताब अल्लाह तबारक व तआला ने जब जिस इंसान को पैदा किया उसका रिस्क जो है उस हिसाब से लिख दिया है। लेकिन हम कहते हैं कि रिस्क की कुशादगी हो, हम उससे दुआएं मांगते हैं अपने रिस्क की वसअत के लिए। अच्छा, रिस्क की वसअत को मैं थोड़ा सा एक फैला के देखती हूँ। ठीक। वो इस तरह से कि रिस्क सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं, रिस्क जो है सेहत का नाम भी है। हमें कोई, हम पर कोई बीमारी ना आए उसका नाम भी है, और हमें भला और बहबूद मिले उसका नाम भी, एनवायरनमेंट भी अच्छी हो उसका नाम भी है। तो ये जो रिस्क है इसकी वसअत बहुत ज़्यादा है। तो हम वो रिस्क जब अल्लाह से मांगते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि जी हम उससे अपनी जो सेहत है, तंदुरुस्ती है, फलाह और बहबूद है, ये हम सब उससे तलब करें। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। जब हम ये मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला देता है, और फिर उसमें कुशादगी और वसअत जो है वो पैदा होती है। हम एक बार फिर बताते चलें वो नंबर जिस पर आप डायल करके हमसे सवाल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 99231178। कराची से बाहर रहने वाले इससे पहले 021 डायल करेंगे, और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले 0092 डायल करेंगे। इस वक्त एक कॉल शामिल करते हैं। जी ले लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम जो शुरू किया है आपने। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शाहिद महमूद मेरा नाम है जी, और मैं कराची में, मैं अपने पानी का जो जहाज होता है मर्चेंट नेवी में हूँ, मैं सेकंड इंजीनियर हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। जी, तो ये कराची से 13 माइल दूर खड़ा हुआ है हमारा जहाज, एंकर किया हुआ है। अच्छा। तो मैं एक सवाल हाजी हनीफ तैयब साहब से ये पूछना चाह रहा था, ये रिज़्क़ की वसअत से मुताल्लिक है ये सवाल कि हम मुसलमान खास तौर से रिज़्क़ की बेइंतहा बेअदबी करते हैं, जो आमतौर से नजर भी आती हैं, जैसे शादी वगैरह के खानों में और इसमें उसमें जाया करते हैं, पाँव तले रोनते भी हैं हम लोग। और उसके अलावा एक चीज जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ते, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में बरकत नहीं होती। तो इस हवाले से जरा सा उसको थोड़ा वादे करके अगर इसका जवाब दे देंगे मैं बहुत ही मशकूर हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल हम जानते हैं। जी, बहुत अहम सवाल किया है आपने। थोड़ी देर पहले एक सवाल भी किया, तो दोनों को मिलाकर एक ही साथ में जवाब दे देता हूँ। कभी कभी देने वाला कुछ अरसे बाद लेने वाला बन जाता है। बेशक। जो आदमी अल्लाह की नेमतें खाकर
शुक्रिया अदा न करे, कुफरान नेमत करे, तो फिर उसकी रस्सी खींची जा सकती है। उस सूरत में वो बजाय देने वाला लेने वाला बन जाता है, और हम देख रहे हैं। फिर अगर वो देने वाला जो है वो कमाने के दौरान हलाल और हराम की तमीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दे, तो भी इसका बड़ा चांस रहता है कि उसकी गिरफ्त हो जाए, और अगर उसकी गिरफ्त हो गई तो फिर उसके लिए संभलना मुश्किल हो जाता है। हमारे भाई ने तो बहुत अच्छी बात कही कि न सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से दिए गए खाने पीने के जो अशिया हैं जी, उनके साथ हम बड़ा जुल्म करते हैं जी। अब एक मुकाबला स्टेटस कल्चर का चल चुका है कि बच्ची या बच्चे की शादी में मैं 26 आइटम पकाऊंगा, उसने 22 पकाई थी, मैं 24 पकाऊंगा। और एक ऐसे हमारे दोस्त ने 26 आइटम पकाई थी, तो मैं उस दिन ख़ास तौर पर समझाने के लिए रुक गया, हालांकि मुझे बहुत देर लगी। जब सब चले गए तो मैंने कहा भाई अब 5 मिनट मुझे भी दे दो। बोले इतने घंटे आपने मुझे दिए तो मैं ज़रूर दूंगा। तो उन्होंने जो 26 छोटे छोटे खाने के पेविलियन बनाए थे, उन सब जगह में उनको ले गया और देखा कि आप उनको बताया कि देखो कितना रिस्क यहाँ ज़ाया हुआ है। थोड़ा बहुत सादा खाना भी कर लेते तो भी हो सकता था। मैं बिला मुबालगा कहता हूँ कि सिर्फ उस खाने से 50 गरीब बच्चियों की मजीद शादी भी हो सकती थी। बेशक। अच्छा, अब इसके बाद जब ये खाना खा लिया जाता है तो आप और हम इसको दोबारा भी देख सकते हैं, नाजरीन और सामीन जब चाहें इस दावत में देख सकते हैं कि फिर इसके बाद बहरे उसको जब समेटते हैं तो रोटी के टुकड़े, चावल, गोश्त वोश्त सब कचरे में जाता है और ज़ाया हो जाता है। तो ज़ाहिर है कि अल्लाह का दिया हुआ रिस्क बंदा होकर उसकी बेइज्जती और बेहुरमती करे और अल्लाह के गज़ब को दावत दे, तो फिर तो ज़ाहिर है मुश्किलात का शिकार होगा। तो मैं इन भाई का बेहद ममनून हूँ। सबसे मैं दस्त बस्ता हाथ जोड़कर दरख्वास्त करता हूँ कि ये फजूल खर्च जो है वो शैतान का भाई है। ये फजूल खर्च जो भी करे, मर्द हो या औरत, दोनों जो है उसी ज़ुमरे में आते हैं, तो इसलिए उससे बचें। और इस किस्म की चीज़ें अगर हम ये गरीबों को जो हम खाना खिला रहे हैं जी, वो तो असल में दरअसल अल्लाह उनको खिलाने के लिए हमारे घर वो चीज़ भेज रहा है। बेशक। सुभान अल्लाह। इसमें हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो दरअसल अहादीस में आता है कि जो आपके घर जो रिस्क खा के जा रहा है वो अपने हिस्से का रिस्क आपके घर खा के जा रहा है और आपकी मुश्किलात उसके आने के सबब दूर होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और यकीनन हम इस वक्त यही कहना चाहेंगे, जैसे अभी हनीफ तैयब साहब ने बात की कि 26 आइटम तैयार हो रहे हैं जिस शादी में, अगर उनमें कुछ कमी कर ली जाए और वो कमी हम अपने सैलाब ज़दगान बहन भाइयों के लिए पहुंचा दें तो यकीनन ये परेशानी, ये मुश्किल दूर हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हम कभी ले के आजमाते हैं और कभी दे के आजमाते हैं। तो जिनसे लिया गया उनकी भी आजमाइश है और जिनके पास इस वक्त है ये भी बहुत बड़ी आजमाइश है। देखिए, हम ये भी बात करते हैं ना, जैसे अफ्तार की बात करते हैं, हम सहर की बात करते हैं, और ये बार बार हम आपकी खिदमत में दरख्वास्त भी करते रहते हैं कि अगर बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो सादा भी अफ्तार हो सकती है, चीज़ें बचाई जा सकती हैं, चीज़ें पेश की जा सकती हैं। सोचते हैं और उस पर गौर करते हैं और इंशाअल्लाह लज़ीम इस पर अमल भी ज़रूर करेंगे। जहारा साहब, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, आप कुछ फरमाना चाहती थी इस सिलसिले